Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, today date is 9/9/2020, chapter number 14. So, and the name of the chapter is Community Services. So, name of the chapter is Community Services. So, student, yesterday we have done little discussion on this chapter. So, before starting the video, let's do the recapitulation what we have done in our previous video. So, I give you the example of the school, how the school runs with the help of a principal, vice principal, headmistress and teachers along with the office staffs, group D employee also. So they all work together to provide the student all the facilities and education. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दिया था बिफोर स्टार्टिंग दिस कि हाउ द स्कूल रन with the help of the principal, vice principal, headmistress, teacher, and in the school you have office staff also and group D employees also. So they all work together, okay, to provide the student all the facilities in the schools and good education. So now student, we are discussing how many types of 3 levels of government in India. So student, so how many levels of the government are in India, student? There are 3 levels of government in India. Is it clear? First one is the central. First one is the central. Okay. Then second is the state. And third level of government is known as local self government. Is it clear? In the same manner, see student, when we are talking about the government in our country, India, so there are 3 levels of government. One is the central, one is the state, and another is what? That is the local self government. Okay. So student, central government is based in Delhi. ठीक है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है बेटा वो कहाँ पे होती है? दिल्ली में. ठीक है, ये बड़ी बड़ी चीजें देखती है. इट लुक आफ्टर इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द कंट्री सच एज डिफेंस है, फाइनेंस, रेलवेज. सो आफ्टर दैट इफ यू सी, इस आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया. सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 states. How many states in India? India is divided into 28. There are 28 states in India. So here it is written state. First is the central government is in, where is it? Is it in Delhi? And
it looks after important matters of the country such as defense, finance and railways. Okay, now India is divided into 20 state 20 sorry India is divided into 28 states. So second is written state. So student, in each state there is a chief minister. सारी स्टेट्स के क्या होते हैं बेटा, चीफ मिनिस्टर होते हैं. जब हम अभी जस्ट इतनी सी डिस्कस कर ले रहे हैं, जब फर्दर होगा देन आई विल रीड इट एंड देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन. और local self government, it means we are talking about the villages. There are many villages in India. So village level के जो रूरल, अर्बन शहर होते हैं, रूरल्स जो गांव के एरियाज होते हैं. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द villages area. So in this manner the level of the government in India, that is divided into three parts, that is central, state and local self government. Is it clear? And see, the central government which is in Delhi, so the head of this, what the head of this government, that is who, it means who is the प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट, ये तो अभी आप लोग के लिए अभी उतना नहीं आया है, लेकिन आप ये जान लो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, लोकसभा जो आपकी है, प्राइम मिनिस्टर जो आपके हैं, हु इज योर प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र मोदी. सो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो दिस गवर्नमेंट इज इन द सेंट्रल. ठीक है, इस समय सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है बेटा? इस समय सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है. ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है एंड द प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज मिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, इन द सेम मैनर, अब ये तो सेंट्रल में हो गई, जो दिल्ली की बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो लोकसभा क्या होता है, व्हाट इज लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सो दिस थिंग यू विल डिस्कस इन क्लास 5. आप क्लास 5 में ये सब चीजें डिस्कस करोगे. अभी भी इन अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर लेवल, जस्ट आपको ये दिमाग में रखना है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है तो इट मीन्स द this government has a prime minister. Okay, and after that when we discuss about the states की जब डिस्कस करेंगे बेटा, तो स्टेट में भी उनका हेड कौन होता है? स्टेट्स में जो गवर्नमेंट बनती है, एंड द हेड इज नोन एज चीफ मिनिस्टर. Okay, so in India there are 28 states. It means in all the state there is a chief minister, and after that what is the role and duties of this chief minister we will discuss further. Okay, and local self government, it means we are talking about the rural area. It means we are talking about the villages. What type of a government is in the villages? It means we are talking about the villages. Central means government which is in Delhi. Is it clear? And in this prime head is the head, see all the matters of the country. And state, in state there is a chief minister, and he look after all the rules and regulation of the state. And after that local self government, it means we are talking about the rural area. It means we are talking about the villages. हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? villages की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो बुक से चलते हैं. देखो, each state in India has its own government. ठीक है, the state government are responsible for maintaining law and order, transport and health services in their states. So each state, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, each states has its own government होती है. ठीक है, so student let understand, इतना डिस्कस कर देते हैं. देखो, anyone whose age is 18 or above 18. अब देखो स्टेट में स्टूडेंट गवर्नमेंट्स कैसे बनती है, एंड हाउ द चीफ मिनिस्टर वाज चूज. सो व्हाट्स हैपन हियर स्टूडेंट, इलेक्शन होता है. इज इट क्लियर? इलेक्शन इज बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज. अलग अलग पार्टीज है, आपने सुन रखी होगी, बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे बहुत सी
parties हैं in our country. So there is an election. Now the question arises, who are the people who give these who are the peoples who choose the government or who can give the votes. तो सबसे पहले ये समझ लो बेटा, अ पर्सन हुज एज इज 18 और अबव 18 दे कैन गिव द वोट. ठीक है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वोट देते हैं एंड द पार्टी विच विन, वही पार्टी क्या करती है, वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है स्टेट में. ठीक है, और उस स्टेट के गवर्नमेंट के जो हेड को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग चीफ मिनिस्टर बोलते हैं. इट मीन्स दीज मिनिस्टर्स आर chosen by the votes given by the person living in that state. अब इनका इलेक्शन होता है, हाउ दे आर चूज, दे आर सो द पर्सन दोज हु आर लिविंग इन दैट स्टेट, उस स्टेट में बेटा जो लोग रहते हैं और जिनकी एज 18 है या 18 से अबव है, दे कैन गिव द वोट. तो उस स्टेट में जो लोग होते हैं, दे गिव द वोट एंड दे चूज द चीफ मिनिस्टर. ठीक है, वो लोग वोट देते हैं और जो स्टेट का जो हेड होता है, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है और उसके हेड को क्या हम बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं. एंड ही इज आल्सो इलेक्टेड बाय द वोट्स गिवन बाय द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. और उसका चुनाव कैसे होता है, उस स्टेट में जो लोग रहते हैं उनके वोटिंग से होता है, उनके वोट देने से होता है. इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज द एज लिमिट? एज लिमिट है 18. 18 से लेस है अगर आपकी एज, तो यू कैन नॉट गिव द वोट. इफ योर एज इज 18 और अबव 18, अ पर्सन हुज एज इज 18 और अबव 18 कैन गिव द वोट इन द इलेक्शंस. वो इलेक्शन में बेटा वोट दे सकता है जिसकी एज 18 है या 18 से ज्यादा है. अब 18 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है. ठीक है, तो ये एक बनाया है. ठीक, अब देखो, अब ये जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट की गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा. एंड ही विल मेक द गवर्नमेंट. ओके, नाउ व्हाट वाज द रोल एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. व्हाट स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ. ठीक है, रूल्स और लॉ रेगुलेशन सारे जो उनके स्टेट में है उन्हें मेंटेन करने का काम कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी. एंड ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ फैसिलिटीज जितनी भी हैं, जो पीपल्स उस एरिया में रह रहे हैं, उस स्टेट में रह रहे हैं, तो उनके फैसिलिटीज के लिए कौन वर्क करेगी, स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी. इज इट क्लियर? सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कह सकते हो, जो कि किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है. आ रहा है समझ में? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये न्यू टर्म है आपके लिए. देखो, स्टेट में बेटा इलेक्शन होता है, देयर आर मेनी पार्टीज, or the person whose age is 18 or above 18 they can give the vote. So these the government which get maximum number of votes, that a party which get maximum number of a vote they make a government. और इस स्टेट में जो गवर्नमेंट बनती है, उस स्टेट का जो हेड होता है, we say him as a chief minister. हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, we say him as a chief minister. अब ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई, हाउ इट इज चूज बाय द इलेक्शन एंड हु गिव्स द वोट. वोट इज गिवन बाय द पर्सन हु इज लिविंग इन दैट स्टेट. उस स्टेट में जो, जैसे यूपी है, यूपी में इलेक्शन होगा तो जितने भी लोग यूपी स्टेट में रहते हैं वो ही वोट देंगे, दूसरी स्टेट के लोग नहीं आएंगे. वो अपनी स्टेट में वोट्स दे सकते हैं. ठीक है, जब भी चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट जब भी बनती है. ठीक है, सो द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज ए चीफ मिनिस्टर एंड ही इज इलेक्टेड बाय द, ही इज चूज्ड बाय द इलेक्शन मेथड एंड वोट इज गिवन बाय द पर्सन दोज हु आर लिविंग इन दैट एरिया. जो पर्सन उस एरिया में रह रहे हैं उनके वोट देने से इलेक्शन में वो चूज होता है. ठीक है, एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स द गवर्नमेंट, अगर मान लो किसी की गवर्नमेंट बन गई स्टेट में, तो फॉर हाउ मेनी ईयर इट विल रन, इट रन फॉर 5 ईयर्स. ये कितने ईयर्स के लिए रन करती है, कोई भी गवर्नमेंट स्टेट में जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है, जिस भी पार्टी की बनती है, तो वंस दे आर चूज, देन फॉर हाउ मेनी ईयर दे वर्क इन द स्टेट, कितने ईयर तक वो वर्क कर सकते हैं स्टेट में, 5 ईयर्स. एंड आफ्टर 5 ईयर अगेन देयर इज ए इलेक्शन. ठीक है,
5 साल बाद फिर क्या होता है बेटा, 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होता है। अब जो को बेटा जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो लॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी रूल्स और लॉ मेंटेन करेगी अपने स्टेट में, अपने स्टेट के जो लोग हैं उनके फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, बिकॉज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तभी बेटर होगी व्हेन यू हैविंग अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ ए रोड्स। जब रोड बहुत अच्छे होंगे तभी तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और उस एरिया में रहने वाले लोगों की हेल्थ की जो जिम्मेदारी ये सब किसकी है, अब उस स्टेट की है, ठीक है। जैसे देखो अभी कोविड-19 चल रहा है, आपने देखा है सारे डिसीजन, इफ यू वॉच द टेलीविजन एट दिस टाइम, ऑल द हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूपी, सो he take all the decision and he is the person who provide maximum facilities to the people who are living in the state. Is it clear? UP state, okay, because he is the chief minister of UP, so he with other person also, ये नहीं मतलब मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं है, there are many others member in his party also, they sit together time to time, they do meetings for the welfare of the people who are living in their states, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर अलोन वर्क करता है, उसकी भी एक कमेटी होती है, उसकी भी एक वो क्या है, कई पर्सन्स हैं, ठीक है। सो दे डू द मीटिंग्स एंड दे टेक द डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द स्टेट। इज इट क्लियर? आप देख रहे हो इस समय कोविड-19 है, सब कुछ किया जा रहा है ना, ठीक है। ही सो दिस इज द रोल ऑफ द और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब जैसे यूपी चीफ मिनिस्टर इज योगी आदित्यनाथ, सो what are the problems peoples are facing in यूपी स्टेट और एनी प्रॉब्लम, जैसे अब कोविड-19 ही प्रॉब्लम है, ठीक है। सो he take all the decisions and he is providing maximum facilities to the people living in this state, that is UP. In the same manner in other state also they have also their own chief minister and they also look their states and look the people of their states। तो ये हो गया आपका बेटा स्टेट्स का, ठीक है। तो एक बार रिकैप्चुलेशन कर देता हूं, मैंने स्टेट के बारे में आपको क्या बताया। देखो मैंने आपको बताया सेंट्रल, दिस इज इन द दिल्ली, ठीक है, ये आपकी मेन गवर्नमेंट है जो आपकी कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, ओके। अब नेक्स्ट फिर मैंने आप लोग को बताया स्टेट, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड ऑल स्टेट्स हैव देयर ओन चीफ मिनिस्टर। एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ हाउ वी चूज दिस गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, कोई की भी गवर्नमेंट होती है जो भी स्टेट में होती है, हाउ दे आर चूज बाय द मेथड ऑफ इलेक्शन। इन द इलेक्शन द पीपल दोज हु आर लिविंग, इलेक्शन में क्या होता है, जो लोग वहां रहते हैं उस स्टेट में वही लोग वोट्स दे सकते हैं। एंड व्हाट इज द एज ऑफ गिविंग द वोट, एज ऑफ गिविंग द वोट फिर मैंने आपको बताया, इट इज 18, अ पर्सन हुज एज इज 18 और अबव 18 एज होगी या अबव 18 एज होगी, दैट पर्सन कैन गिव द वोट। एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, इफ द गवर्नमेंट हैज बीन चूज, देन फॉर हाउ मेनी ईयर्स इट विल रन इन दैट स्टेट। अगर कोई गवर्नमेंट बन जाती है तो वो उस स्टेट में कितने ईयर्स तक रन कर सकती है, दैट इज 5 years, एंड आफ्टर 5 years देयर इज अनदर इलेक्शन, ओके। सो स्टेट गवर्नमेंट की थोड़ा सा जितना आपका दिया है दैट डिस्कशन आई हैव डन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो ये थर्ड पॉइंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि if we are talking about the local self government, it means that we are talking about the rural area, that is our villages। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, जो कि रूरल एरिया में कौन सा एरिया आता है, जो विलेजेस एरिया होते हैं, जो गांव होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो शहर है वहां तो स्टेट्स हैं, ठीक है, शहर स्टेट्स में, स्टेट में चीफ मिनिस्टर हो गया, ठीक है। अब जो विलेजेस हैं, सो
क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंट्री है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इट लुक ऑल द पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. So that is the reason government is divided into three parts. Is it clear? That is central, state and local self government. Now see student, local self government at the rural level is the ग्राम पंचायत. अब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है विलेजेस में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम पंचायत बोलते हैं. व्हाट वी से इट एज ए ग्राम पंचायत. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है बेटा, जो रूरल एरिया में है, ठीक है, लेवल इज द ग्राम पंचायत. अब देखो, अब स्टेट का तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया कि स्टेट में गवर्नमेंट कौन बनाती है, कौन लोग इलेक्शंस में वोट देते हैं. दैट थिंग्स वी हैव डिस्कस. ओके, नाउ लेट टॉक अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल. रूरल लेवल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द विलेजेस. हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द विलेजेस. ओके, तो विलेजेस में कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस. सी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल is the gram panchayat. The member of the gram panchayat are elected or chosen by the people of the village for a term of 5 years. The head or sarpanch or pradhan is also chosen by the people. Any man or woman of the village who is 18 years of age or above can vote. The number of member of a gram panchayat depends on the size of a population. It varies from 17 to 17 members. Or the government has reserved a few seats for a woman, stool caste and stool tribes in the gram panchayat. अब देखो ग्राम पंचायत क्या होती है. Again देखो, now he is saying that the member of the gram panchayat, they are also chosen by or they are elected by the peoples who are living in that village. ठीक है, ग्राम पंचायत क्या है बेटा? अब ग्राम पंचायत में जो इसमें भी पर्सन्स आर चूजन एंड इसमें भी इलेक्शन होता है. ग्राम पंचायत में भी जो गांव में होते हैं, और वो भी मैं बताता हूं उसके हेड को क्या बोलते हैं. पहले आप ये समझ लो कैसे इलेक्ट चूज होते हैं. ठीक है, सो the person, the members of the gram panchayat, they are also elected by the peoples living in that area, and method is the same, by the election. And again the time is also same in the state. If there is a government in the state, then for how many years the government run? 5 years. In the same manner, the members of the gram panchayat are elected by the people living in the villages. जिस एरिया में ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस विलेज में जितने लोग होंगे वो ही वोट दे सकते हैं. Again common thing is that they are elected for how many years? So student, the answer is they are elected for 5 years. How many years? They are elected for 5 years. Again, and I told you, by giving the vote, people of the villages choose the member of the gram panchayat. So what is the method? What is the age limit for giving the vote? Again the same, what is in the state. State में क्या बताया था
a person whose age is 18 or above, they can give the vote. In the same manner, in the election of a gram panchayat, those people who are living in that villages, they give the vote. And what is the condition for that? Condition is the same that which is in the state also. Condition is that a person whose age is 18 or above 18, they can give the vote. Another thing that is also very common to the states runs for, when the members are elected, then they run the government for 5 years. In the same manner, when the members of the gram panchayat are elected by the people of the villages, so what is their term? Their term is for 5 years. Their term is for 5 years. And the person whose age is 18 or above 18, they can give the vote. Another thing is that the number, how many members are in gram panchayat. Another important thing is how many members, how many members in gram panchayat. What does it mean? It means that ग्राम पंचायत में कितने मेंबर चूज किए जाते हैं. सो इट वेरीज, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. ठीक है, 7 to 17 रखा गया है. 7 to 17. इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. अगर विलेज की पॉपुलेशन लेस है तो मेंबर 7 ही हो सकते हैं, थोड़ी ज्यादा है तो 8-10 हो जाते हैं. मैक्सिमम 17 रखा है. मैक्सिमम कितना रखा है बेटा? मैक्सिमम 17 रखा है. इट वेरीज फ्रॉम 7 to 17. और व्हाट इज द रीजन कि मेंबर 7 भी हो सकते हैं या 17 भी हो सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. ये किस पे डिपेंड करता है? 7 to 17 जो इसका नंबर वेरीज कर रहा है ग्राम पंचायत मेंबर्स का, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन. It depends upon the population of the village. ठीक है, विलेज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ग्राम पंचायत के मेंबर्स भी ज्यादा होंगे. अगर पॉपुलेशन लेस है सो इसके मेंबर भी लेस होंगे, लेकिन 17 से ज्यादा नहीं हो सकते. ठीक है, 7 to 17 रखा है, नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 17. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने आप लोग को बोला था, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो आपका हेड है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर है. ठीक है, पूरी कंट्री का हेड दूसरा. आई एम बस टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल में जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी तो उस गवर्नमेंट का जो हेड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं. व्हेन वी कम इन द स्टेट, देन द हेड ऑफ द स्टेट, इट इज नोन एज चीफ मिनिस्टर. Head of the state, it is known as a chief minister. And when we are talking about the gram panchayat, okay, after these members are choose or elected by the members of the villages, after that who is the head of the gram panchayat? So student, ग्राम पंचायत के हेड को हम लोग सरपंच भी बोलते हैं और प्रधान भी बोल सकते हैं. बोथ नेम्स आर, प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट बट द मीनिंग इज सेम. आप ग्राम पंचायत के हेड को सरपंच भी बोल सकते हो, दैट इज आल्सो राइट. और अगर आप उसे प्रधान बोलते हो, दैट इज आल्सो राइट. बोथ हैविंग द सेम मीनिंग. बोथ मीन्स दैट सरपंच और प्रधान मीन्स, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत. इफ यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन इन योर रफ कॉपी आल्सो. हेड ऑफ ग्राम पंचायत is known as सरपंच और प्रधान. ओके, हु इज द हेड? हेड ग्राम पंचायत हेड को क्या बोलते हैं? सरपंच भी बोल सकते हो या आप इसको प्रधान भी बोल सकते हो. इज इट क्लियर? ही इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत. ओके, now another thing is that government has done some of the
कुछ फिक्स क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। अब ये जो मेंबर चूज होते हैं जिसकी नंबरिंग दी है 7 to 17, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेजेस। सो गवर्नमेंट हैज मेड सम कुछ फिक्स चीजें की हैं उसमें कि जो ये मेंबर्स होंगे इनमें मेंबर्स में देयर इज ए रिजर्व सीट फॉर द वुमन आल्सो, स्टूल ट्राइब्स आल्सो एंड स्टूल कास्ट आल्सो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।